चलो देखो, Meghraj and company wishes to commence the business of supplying ready-made garments within Punjab and in the neighboring state of Delhi and Haryana. Kindly state as to whether it is as to what is the taxable event. जीएसटी में taxable event क्या होता है? Supply under GST and leviability of CGST, SGST, UTGST and IGST. सेम स्टेट के अंदर है तो CGST, SGST. स्टेट चेंज हुआ तो IGST. अगला देखो, Damodar Private Limited, registered in Delhi, is planning to transfer some goods to its branch registered in West Bengal without any consideration, so that the goods can be sold from the branch. The company believes that the transaction that will be undertaken by it would not qualify as supply, as there no consideration is involved. क्या लगता है, सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? गलत है सर. क्या इसे सप्लाई मानेंगे? एज पर शेड्यूल 1, ठीक है, सेक्शन 7 नहीं, एज पर शेड्यूल 1, ठीक है. अगला, पृथ्वी एसोसिएट्स is engaged in supplying of taxable goods. It inquires from its tax advisor as to whether any activity can be treated as supply even if made without consideration in accordance with the provision of the GST law. You are required to enumerate, क्या हो गया मुझे, enumerate such activity if any. तो सर क्या अगर कंसिडरेशन ना भी हो तो भी जीएसटी लग सकता है? यस लग सकता है. कहाँ दिक्कत है? ये आंसर गलत है, ये आंसर किसी और चीज का कॉपी हो गया. ठीक है सर, शेड्यूल 1 के ट्रांजैक्शंस लिखने होंगे इसमें हमें. ठीक, अगला वाला, गगन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन हरियाणा, is engaged in providing maintenance and repair services for heavy steel machinery. प्यारा क्वेश्चन है. For carrying out the repair work, Gagan Engineering Private Limited sent its container truck equipped with the items like repair equipment, consumables, tools, parts, etc. from Haryana workshop to its own repairing center located in another state across India, where the client machinery are being bought and are being repaired. Discuss the leviability of GST on the interstate movement of truck from the workshop of the Gagan Engineering Private Limited in Haryana to its own repair center located in another state across India. क्या इस पे जीएसटी लगेगा? सोच लो, पढ़ लो, आंसर मत देखना, गलत भी होता है. गलत भी होता है. हाँ, बताओ बताओ भाई. बोलना, क्या हो गया? गलत ही तो होगा, बोल, जो लग रहा है बोल, बिंदास बोल सकते हो सर. सर ट्रक जो इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है उस पे जीएसटी नहीं है. ट्रक में जो रिपेयर के पार्ट्स वगैरह जा रहे हैं ना सर, उस पे जीएसटी है सर. उस पे क्यों नहीं जीएसटी होगा? तो जीएसटी है. अगला देखो, Sarvana and Sons wishes to start supplying alcoholic liquor for human consumption in the state of Tamil Nadu. Therefore, it applies for license to the Tamil Nadu government for selling liquor, for which the state government has charged specified fees from it. एकदम मस्त क्वेश्चन. Examine whether the grant of alcoholic liquor licensed by the Tamil Nadu government to Sarvana and Sons qualifies as supply. क्या ये सप्लाई माना जाएगा? अगर आप लाइसेंस पे लगाए तो मेरे दारू पे जीएसटी है, और लाइसेंस छोड़ोगे तो ही मेरा दारू बचेगा. क्या लग रहा है? दारू के लाइसेंस पे जीएसटी कैसे लगा सकते हो? दारू के लाइसेंस पे जीएसटी लगा मतलब दारू पे जीएसटी लग गया इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली तो फिर मतलब क्या हुआ दारू को छोड़ने का? बेटर है दारू को ही ले लो. अगला देखो,
Composite supply is treated as supply of that particular goods or services which attract the highest rate of tax. For the purpose of considering tax liability, examine the validity of the statement. क्या ये statement सही है? क्यों? मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट होता है, तो कंपोजिट में क्या होता है? प्रिंसिपल सप्लाई के रेट से लगेगा, ध्यान रखना। क्या ये बकवास है? ये क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ना नहीं पढ़ना मत पढ़ना। अगला देखो, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7, रीड विथ शेड्यूल 1। Suleka manufacturers have a factory in Delhi and a depot in Mumbai. Both the establishment are registered in respective states. बताओ, आप ही पढ़ के बताओ सर, इस पे जीएसटी है कि नहीं है? बताओ भाई, है कि नहीं जीएसटी? है ना सर, शेड्यूल 1 जिंदा है ना सर? चलो दूसरा पढ़ो, ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, दूसरा वाला बताओ, क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन अभी कर चुके हैं। फैमिली डिस्प्यूट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री कॉस्ट चला लेता, रिलेटिव भी चलेगा, बट सर फैमिली डिस्प्यूट हो गया, इसीलिए जीएसटी नहीं है, मतलब सप्लाई नहीं है, शेड्यूल 1 में कवर नहीं है, जीएसटी नहीं है। अगला, क्या बिजनेस पर्पस में कवर हो जाएगा? यस, फ्री ऑफ कॉस्ट, रिलेटेड, बिजनेस पर्पस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, जीएसटी है सर। अगला, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सप्लाई वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। बताओ भाई, रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक। Goods forming part of the business asset are transferred or disposed of by or under direction of person carrying on the business so as no longer to form part of those assets. Goods की सर्विस। अगला, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स without the transfer of title in goods, service। Transfer of title in goods under an agreement which stipulates that the property shall pass at a future date upon payment of full consideration as agreed. गुड्स हायर परचेज, यही तो पढ़े सर, पूरा पैसा देगा तब देंगे गुड्स की ओनरशिप। क्लियर है सबको? अगला, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सप्लाई वुड बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, service, copyright, patent, trademark, service, any treatment or process which is applied to another goods and services, job work, service। ज्वेलरी वाला एग्जांपल नहीं दिया था क्या? अगला है ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये तो हमेशा क्या होता है? The goods supplied on hire purchase basis would be treated as supply of service। क्या सही बोल रहा है? गुड्स है ना, हायर परचेज में ओनरशिप, अब मैं मालिक हूं, भले लास्ट इंस्टॉलमेंट में बनता हूं, बट बेनिफिशियल ओनर तो बन चुका हूं, रजिस्टर्ड ओनर लास्ट इंस्टॉलमेंट में बन जाऊंगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, एग्जामिन वेदर द एक्टिविटी ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस वुड अमाउंट टू सप्लाई अंडर सेक्शन 7। मिस श्रीनीति कौशिक receive interior decoration services for a resident located at Bandra, Mumbai from Mr. Rachel of Sydney, Australia. The amount paid for the said services is 5,000 Australian dollar। बोलो भाई, क्या ये सप्लाई है? हाँ, शेड्यूल 1 में कवर्ड है, शेड्यूल 1 में कवर्ड नहीं है, बट ये नॉर्मली सप्लाई है क्योंकि कंसिडरेशन है सर। अगला, मिस श्रीनीति कौशिक रिसीव इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर हर रेसिडेंस लोकेटेड एट बांद्रा, मुंबई फ्रॉम हर ब्रदर Mr. Varun residing in Sydney, Australia, wholly dependent on Miss Sriniti। रिलेटिव में आएगा कि नहीं? आ जाएगा ना, wholly dependent हो गया। Further, Miss Sriniti did not pay any consideration for the said services। शेड्यूल 1 में कवर होगा कि नहीं? पढ़ लो, कोई गड़बड़ी नहीं है। शेड्यूल 1 में कवर होगा कि नहीं? नहीं, बिजनेस नहीं, वो तो लिखा ना, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज फॉर हर रेसिडेंस लिखा हुआ है। तो बताओ भाई, शेड्यूल 1 में कवर नहीं होगा सर, क्योंकि बिजनेस पर्पस नहीं है, बिजनेस होता तो बात करते। Will your answer change in the above case? Ms. Sriniti has taken interior decoration services with related to her business। तभी कवर हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन में अभी इस टाइप का क्वेश्चन किए, बताओ मेरे को, अमाउंट ही बताओ सीधा,
पढ़ लो और अमाउंट बताओ, बहुत सिंपल है सर। रेट तो मेरे को ही पता है 28 नालायक को। अमाउंट पढ़ लो, कोई गड़बड़ी नहीं है सर, मैं कहीं नहीं भग रहा। क्यों है भाई? ओ भाई, एक मिनट, एक मिनट, रेफ्रिजरेटर का रेट बता। अबे वो 18% है। ओ भाई, अमाउंट अमाउंट तो फिर कैसे बोल सकता है तू सब में अलग अलग लगेगा सर? इसने तो बेचारे ने सबका मिला के एक साथ लिया 1 लाख रुपए, ये लिखा भी है फॉर ऑल द आइटम। क्या 28% लगेगा? क्या ये मिक्स में आ जाएगा? यस, क्योंकि सर ये सब चीजें अलग अलग बिक सकती थी, आपने जबरदस्ती इसको जोड़ दिया सर, सिंगल प्राइस चार्ज किया सर। समझ आया? इसके बाद ये वाला बताओ, बहुत इजी है सर, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अमाउंट, अबे वो परसेंट होता है, अमाउंट बोल रहा हूँ, अमाउंट बोलता हूँ, परसेंट बताते हो नालायकों। नहीं पता, अमाउंट नहीं पता, मेरे को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा सर, मेरे को भी नहीं पता। हाँ हाँ, हाईएस्ट रेट आएगा क्योंकि वो तो अलग से दिख रहा है। बात ये है कि अमाउंट कितनी है भैया, 1,08,000। सर 20,000 इंटू 30, 6 लाख, 6 लाख का 18% कर लो, जो भी आ रहा होगा। अगला देखो, साहब सेल्स एंड एयर कंडीशनर डीलर इन जनकपुरी दिल्ली नीड्स 4 एयर कंडीशनर फॉर हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन, पता नहीं कहीं पर होगा, एनक्लेव। सफदरगंज बोला हुआ, ठीक है, एनक्लेव। देयरफॉर ही ट्रांसफर्ड, एक अच्छा क्वेश्चन है, देयरफॉर ही ट्रांसफर 4 एयर कंडीशनर ऑन व्हिच आईटीसी हैज ऑलरेडी बीन अवेल्ड बाय इट फ्रॉम इट्स स्टॉक फॉर द सेट पर्पस। चार, सर ये काम ही क्या एक का करता था, एसी का काम करता था, 4 एसी उठाया और 4 एसी उठा के अपने घर में शिफ्ट कर दिया, जिसकी आईटीसी तो वो लेके बैठा। एग्जामिन वेदर द सेड एक्टिविटी अमाउंट टू सप्लाई, क्या ये सप्लाई माना जाएगा? हाँ, किसके हिसाब से? शेड्यूल 1 याद है ना, फर्स्ट ट्रांजेक्शन परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड। फर्दर अ जनकपुरी रेसिडेंट आकाश अप्रोच साहब सेल्स, he sold an air conditioner to साहब सेल for 5,000। आकाश ने साहब सेल को एसी बेचा है 5,000 में। आकाश हैज बॉट द एयर कंडीशनर 6 months ago for his residence, अपने घर के लिए लाया था 6 महीना पहले, अब 5,000 में बेच दिया। Does sale of air conditioner by the आकाश to साहब सेल does amount to supply? क्यों? अरे बात आईटीसी की है ही नहीं, अबे कस्टमर है ये, कस्टमर है ये, कस्टमर दुकानदार को बेच रहा है एसी, तो बात ही क्यों कर रहे हो जीएसटी की? वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं होगा, और रजिस्टर्ड हुआ तो उसका बिजनेस नहीं होगा, घर से उठा के लाया है एसी वो। अच्छा पॉइंट था, सेकंड वाला कंफ्यूजिंग है, फर्स्ट वाला तो इजी था, सेकंड वाले में गलती होने के स्कोप है, आई एम नॉट सेइंग गलती होगी, बट होने के स्कोप है सर। ये जब इंस्टीट्यूट को पास करना रहती है तो ऐसे क्वेश्चन पूछती है, 5 ऐसे एक्टिविटी बताओ जो शेड्यूल 3 में कवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट, ठीक है, आपको सीधा पार्ट ट्रांजेक्शंस लिखने पड़ते हैं। जब इंस्टीट्यूट को पास करना रहता है तो इंस्टीट्यूट ऐसे क्वेश्चन पूछती है, व्हाट डू यू मीन बाय कंसीडरेशन, ठीक है, और कंसीडरेशन
received by charitable institution from individual donor without quid pro quo. Important feature याद है quid pro quo, something in return. तो हमने किसी को डोनेट किया तो हमें वापस क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा सर। अरे हमें क्या मिलेगा? हमें कुछ नहीं मिलेगा ना। ये आपसे कंसिडरेशन की डेफिनेशन पूछ रहा है और जानना चाहता है कि अगर आपने चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेट किया है पैसा तो क्या टैक्सेबल होगा कि नहीं? हाँ, हम पढ़ेंगे, एग्जेम्पशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को डोनेट कर सकते हो। टाटा मेमोरियल को करो ना, 1 करोड़ रुपए डोनेट कर दो, जीएसटी नहीं है। ठीक है, अगला देखो, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटीज would amount to supply under GST law. Glory Limited is engaged in manufacturing and selling of cosmetic products. Seva Trust, a charitable organization, approached Glory Limited to provide financial assistance for its charitable activity. Glory Limited donated a sum of 2 lakh to Seva Trust with a condition that Seva Trust will place a hoarding at the entrance of the trust premises displaying picture of the product sold by Glory Limited. क्या लगता है? क्या लगता है? आप लोग इसको पढ़े नहीं हो, बट आपको क्या लगता है? तो जीएसटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर अगर आपको दान ही करना है तो मार्केटिंग मत करो। जैसे मान लो मेरे को किसी मंदिर में वहां पर धर्मशाला है, वहां एक रूम बनवाना है तो रूम बनवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फॉर माय फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ माय फादर, ये सब लिखवा सकता हूँ, चलेगा, सब चलेगा। अरम इंस्टीट्यूट नहीं लिखवा सकता। अरम इंस्टीट्यूट लिखवाया मतलब सर मार्केटिंग कर रहा हूं मैं, ये डोनेशन नहीं है सर। फिर यहाँ पर फिलेंथ्रोपिक पर्पस ही नहीं रहा, और जब फिलेंथ्रोपिक पर्पस नहीं रहा तो सरकार बोली बैठ भाई इस पे जीएसटी। तो यहाँ तो ये अपना पिक्चर डिस्प्ले करने बोल रहा है कि मैं क्या गुड्स सेल करता हूँ, उसकी पिक्चर डिस्प्ले कर दे, खत्म फिलेंथ्रोपिक पर्पस, मार्केटिंग करना चालू कर दियो। अरे समझ, स्पॉन्सरशिप नहीं बोलते, डोनेशन में लोग ऐसा करते थे, परमानेंट होता है ये। अरे समझ बैठा दिमाग में, ये तो आप धंधा बना दियो, सरकार बोली इस पे जीएसटी। अगला, Mr. Swami of Chennai is working as a manager with ABC Bank. He consulted Mr. Jacobs and Company of London and took its advice for buying a residential house in Mumbai and paid them consultancy fees of 200 UK pound for this import of service. बोलो भाई क्या करे इसका? जीएसटी है कि नहीं है? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, कोई हड़बड़ी नहीं है, पढ़ लो। है कि नहीं है ना सर? कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, क्या सोच रहे हो? खत्म, इतने ही क्वेश्चंस थे।